Class we are going to discuss digital and analog transmission. Okay, what is digital and what is analog transmission? Let's discuss it. Digital and just wait. Yes, digital and analog transmission. Now what does it mean? What is digital, what is analog transmission? So let before starting this, let me give a quick review that this transmission, the communication consisting of three main part. One is what we call transmitter, another one is what we call receiver. These are the components. One is transmitter, another one is receiver, and there is a medium. These are the three main parts of communication system. Now if we, communication can be, or transmission can be done in two ways. One is digital communication, one is what we call digital communication, and another one is what we call analog communication. Now how they are different? Digital communication uses digital signals. If we are talking about digital signals, it is a square wave. It is in the form of square waves like this. And if we are talking about analog communication, then the communication can is done in continuous signal like a sine wave. So this is the one difference. In digital communication, the data is in the form of the communication, or the data is sending in the form of digital, in the form of square wave. And you have to go through two words. One is digital signal, digital. Another one is square wave. How they two are different. Digital or not square, digital or a binary signal, binary signal communication. Digital signal and binary signal, there are two kinds of signal. Digital signal in which there are two levels, but the value of the level is not fixed. One is zero, another one is, it may be anything, but that is what we call, the lower one is what we call low, and higher one is what we call high. This is what we call digital. But in binary signal, binary signal is also just kind of just has a same shape, but the difference lies that here it is 0 and 1. Means 1 stands for high and or on, and 0 stands for off. So ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डिजिटल सिग्नल में और बाइनरी सिग्नल में. पेपर में कभी कभार हम वाइवा में पूछते हैं कि डिजिटल और बाइनरी में क्या डिफरेंस है. तो डिजिटल के अंदर हाई और लो होता है, लेकिन वो लेवल फिक्स नहीं होता. वो 5 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है, हाई लेवल और लो लेवल होता है. ऑब्वियसली वो 0 और 1 ही होता है, लेकिन उसको लेवल की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं होती है. लेकिन बाइनरी के अंदर ये 0 और 1 कहलाता है. जब आप हाई लेवल को हम 1 कहते हैं और लोअर लेवल को हम 0 कहते हैं. दिस इज द डिफरेंस. और एनालॉग के अंदर कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है. इट इज जस्ट लाइक दिस. सो this is the one very very important difference between digital communication and analog communication. In analog communication we use, this is what we call continuous signal. Why they are called continuous signals? Because you see at every point there is a value. Okay, at every point you see there is a value of the signal. At every point there is a value, but here you see at this point there is a value which is fixed, but here there is no value. So that is why this is called discrete signal also. Discrete signal also. So discrete means what? There is no, at some places there is a signal, at some places there is no signal. And continuous, on the other hand, it is continuous at every point. Means at every point you have certain value of the signal. So this is what we call continuous signals, right? And this is the digital communication. So the major thing is, in digital communication we used digital signals, and in analog transmissions we used analog signals, that is a sine wave or cosine wave, which is continuous in nature. So this is the one thing. Another thing, if we want to go into the depth, डिजिटल जो होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है, वो उसके अंदर जो
Basically हमारा टॉपिक क्या था? Let me check. It is digital and analog transmission. Yes. So this for digital communication we use digital signal, and for analog communication we use for analog communication we use these sine waves. I hope everybody understand this thing. Let me ask you people uh, whether you understand this or not. Okay, Kritika, you understand? Kritika Gupta. Yes, sir. Okay, but you understand? Could you please explain? Sir, analog versus digital transmission. Analog transmission is a method of conveying voice, data, image, or signal or a video information. It uses a continuous signal varying in amplitude, phases, or another properties that is in proportion to a specific characteristic of a variable. And the digital transmission transfer messages discretely. These messages are represented by a sequence of pulses via a line code. However, these messages can be represented by a limited set of wave forms that always vary. And what is the difference between digital and binary signals, please? So analog transmission is capable of being conveyed in no fewer than 4 ways through a twisted pair of coax cable, through a fire optic cable, through the air or through water. And the answer. Sir, this is there are some examples like a computer keyboard, that is. Right. So my question is, what is the difference between digital signal and binary signal? सर ये नहीं पता. Okay. So, okay, Rashi Mutreja, please. Rashi. Yes, sir. Sir, digital signal in this the level is fixed, sir. It has high and low level, and in binary signal, the level is fixed. It has particularly 1 and 0, where 1 is high level and 0 is low level. Right. It means the voltage is not fixed in binary signals, but yes, it is fixed in the digital signals, right? So I hope everybody understand now. If we are talking about, if we are talking about the accuracy, accuracy of measurement. So digital signals are more accurate to measured because the values which we get in digital way is easily readable. Like if you have written one or two, you can easily read it. But on the other hand, if it is as, let us suppose there is a meter, and there is a needle which is moving on this meter, that is the analog communication. So sometimes the needle is in between the two levels, so you can't read it properly. So the reading accuracy is more in digital digital machines, or you may say the digital transmission, and the accuracy is bit less in continuous signal reading accuracy, basically what I am talking about. And if we are talking about the cost, obviously the cost of digital devices are less, and the cost of analog communication is more because of more sophisticated kinds of hardware is used in this analog communication. So as far as accuracy is concerned, digital is better. Cost is concerned, obviously the digital blocks are cheaper than the digital system are cheaper than the analog. And if we are talking about robustness and the then also the digital is much better than analog. If we are talking about noise, so noise is less, or other interferences effects are less in digital communication, and which is more in analog transmission. So let's note down one question for the today's class. What is the difference between digital communication and analog communication? What is the difference between digital and analog communication? And my next question is,
what is the difference between digital and binary signals? Okay, I think everybody write these two questions. Now the next topic is some terminologies used in internet. We have to read about some terminologies. One is protocol. Now, what is protocol? Let me explain this. What is protocol? Now, protocol. If we are talking about protocol, protocol means a set of instruction. It is a set of rules or set of instructions used to to stop used to maintain a process, maintain a system or process, maintain a system. So basically, in internet, there is internet is also a sort of communication system. So in internet we use certain protocols. Now protocols means कुछ वे, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ कराने के बाद कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप आगे से हाँ कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। इन द सेम वे इंटरनेट के अंदर भी कई तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमने सुना होगा, आईपी, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं, आईपी आपने सुना होगा, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आपने सुना होगा यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम protocol. So there are there are several types of protocols which are basically we have to go through these three. And you must have to aware about IP is one of the protocol, that is what we call internet protocol. ये किस काम आती है, इंटरनेट को स्टैब्लिश करने के काम आती है। TCP is also a advanced version of IP where transmission which controls the transmission of the signals. So generally earlier in earlier system, जो शुरू का इंटरनेट था उसमें हमने आईपी को यूज़ किया था। आईपी एक तरीके का इंटरनेट प्रोटोकॉल था जिसके अंदर, बट ये अनरिलायबल था। अनरिलायबल मतलब इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती थी, तो अनरिलायबल ये कम्युनिकेशन था। फिर हमने इसको रिलायबल बनाने के लिए इसके साथ टीसीपी को ऐड करा, टीसीपी बनाया गया। टीसीपी था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि रिलायबल था। तो रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, टीसीपी के साथ आईपी को यूज़ करते हैं, जिसको हम टीसीपी आईपी कहते हैं। तो टीसीपी आईपी जो है एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, जो कि आज की डेट में इंटरनेट पे, जो कि आज की डेट में आपका इंटरनेट प्रोवाइड इसकी मदद से होता है। टीसीपी आईपी आईपी एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होती थी अर्लियर। मैंने बताया सबसे पहले अकेले सिंगल आईपी को यूज़ करते थे जो कि अनरिलायबल होता था, लेकिन टीसीपी आईपी फिर टीसीपी बनाया गया जो कि रिलायबल था, तो उसके साथ इसको आईपी को क्लब करके आजकल यूज़ होता है। तो डेट इज़ व्हाट वी कॉल्ड। देखो अनरिलायबल जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि हमें बार बार चेक नहीं करना, कहीं पे आपको सिक्योरिटी नहीं लगानी, तो वो अनरिलायबल था। लेकिन टीसीपी जो था वो रिलायबल था। रिलायबल का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा थे। तो इन दोनों को, क्योंकि कई जगह पे हमें सिक्योरिटी फास्ट स्पीड चाहिए होती है, सिक्योरिटी मैटर नहीं करती है, तो वहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आईपी यूज़ कर लेते थे, लेकिन बाद में टीसीपी आईपी को यूज़ करते थे ताकि इंट्रूडर उसको कुछ कर ना सके। तो टीसीपी आईपी आज की डेट में यूज़ होता है, जिसको हम रिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं, मतलब रिलायबल थी ये इसलिए।
इसको यूज़ करते थे। एक यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल भी, ऐसे कई सारी प्रोटोकॉल्स हैं, बट आपको मेनली ये दो के बारे में पढ़ना है। तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होती क्या है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईपी, टीसीपी, 3 वर्ड है, आईपी, टीसीपी एंड टीसीपी आईपी, तीनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिख लीजिए। ये नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। एक बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आईपी, टीसीपी, आईपी, टीसीपी एंड टीसीपी आईपी, डिफरेंस बिटवीन दीज 3। ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, मतलब ये तो था, ये बेसिकली हमने ये इसके अंडर पढ़ा है, इसको अपने ये इसके अंदर पढ़ा है, प्रोटोकॉल्स के अंदर। हमें खाली टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना। तो प्रोटोकॉल क्या होती है ये पढ़ लिया। इसके बाद डोमेन नेम क्या होता है, आपने डोमेन नेम सुना होगा, www जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम। व्हाट इज दिस www, डोमेन नेम क्या होता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज www? यस, डोमेन नेम क्या होता है, व्हाट इज डोमेन नेम? एनीवन इन द क्लास? सर वेबसाइट पे जाने के लिए एक एड्रेस होता है। कौन बोल रहा है बेटा, पहले रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई। हाँ वैभव प्लीज, वैभव गुप्ता। सर www तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होगा जो नहीं हमें नहीं पूरी नहीं इंटरनेट से नहीं, www नहीं पूछा मैंने, क्वेश्चन इज डोमेन नेम क्या डोमेन। होता है? सर डोमेन नेम एक एड्रेस होगा एक वेबसाइट का। वेरी गुड, डोमेन नेम एक एड्रेस होता है, जैसे कि कोई एग्जांपल दोगे? जैसे कि मैं बोलता हूँ www.vaibhav.com, तो एक्चुअली क्या है कि ऐसे कोई भी बंदा कुछ नहीं बना सकता अपने आप से। एक ना डोमेन रजिस्ट्री होती है, डोमेन नेम, मतलब आपको जब भी किसी की वेबसाइट बनानी होती है, आप सबसे पहले नेम सेलेक्ट करते हैं, और नेम सेलेक्ट करके आपको नेम को परचेज करना होता है। वो कौन प्रोवाइड करता है नेम? वो हमारे पास बड़े सारे होस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से हमें खरीदना पड़ता है। जैसे कि गो डैडी आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसे सर्वर नेम सुने होंगे जो कि ये नेम्स देते हैं। वहाँ से आपको, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज कोई भी बंदा किसी के नेम से कुछ भी कर सकता है, तो गो डैडी पे जाके आपको बकायदा रजिस्टर्ड करना होगा, फिर वहाँ से आप इस नेम को परचेज कर सकते हो। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम किसी भी कंपनी का या किसी भी वेबसाइट का, किसी की वेबसाइट का एक नाम होता है, और वो एक जगह पे जाके रजिस्टर होता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन रजिस्ट्री। डोमेन रजिस्ट्री के अंदर वो सारे नाम रजिस्टर्ड होते हैं, किस बंदे ने लिया है उसका इंफॉर्मेशन होती है, किसने उसकी पेमेंट, क्योंकि ये फ्री नहीं होते हैं। कुछ डोमेन नेम फ्री होते हैं, लेकिन कुछ डोमेन नेम जैसे .com, .edu, .in, डॉट डॉट मतलब जितने भी ये .com, .in, .edu, .exy, कुछ भी जो भी ये सारे हैं, ये सारे के सारे डोमेन नेम जो हैं आपको रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं। तो डैट इज़ व्हाट वी कॉल डोमेन नेम। अब होता क्या है, सबसे पहले आप जब रजिस्टर्ड कराने जाते हो, सपोज मुझे चाहिए www.vaibhav.com, लेकिन मुझे वैभव का ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। तो अगर लिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, वो मुझे सजेशन देगा कि भैया ये वैभव तो लिया हुआ है, आप वैभव 1 इज़ अवेलेबल, वैभव 1 इज़ अवेलेबल, या वैभव 2 इज़ अवेलेबल, ये सारे आपको बता देगा कि ये अवेलेबल है। तो ये भी हो सकता है किसी बंदे ने .com खरीद रखा है, तो आपको .in या .co.in आपको वो कहेगा ये वाले अवेलेबल हैं, आप ये ले लो। तो डोमेन नेम एक जगह, डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंटरनेट, किसी भी कंपनी का रजिस्टर्ड करने का नाम होता है, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डोमेन नेम क्या है। जैसे कि मैं आपको अगर गूगल पे दिखाऊं, ये देखिए, अगर हम गूगल करें डोमेन नेम, देखिए डोमेन नेम चेकर भी आता है। तो डोमेन नेम क्या है, रजिस्टर योर डोमेन नेम। आप यहाँ पे जा करके, वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा डोमेन आपका फ्री अवेलेबल है कि नहीं है। तो सर्च फॉर न्यू डोमेन नेम, लाइक जैसे मैं पवन.com के लिए चेक कर रहा हूँ कि पवन.com मुझे मिल जाएगा क्या। सो देखो ये उसको सर्च करके बताएगा मुझे, वो देखो वो बता रहा है कि ये पवन.com इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन मुझे ये कह रहा है ये वाले ले लो,
pawan.life, pawan.site, pawan.fun, ये कोई सा भी खरीद लो तो वो ये बता रहा है। ये देखो, इस तरीके से हम डोमेन नेम हमें चेक करना पड़ता है। ऐसे ही org.in ये सब नहीं मिलेंगे, .blog मिल जाएगा, .cloud मिल जाएगा, ऐसे ऐसे वो हमें सजेस्ट कर रहा है। तो डोमेन नेम आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक नाम चाहिए होता है, तो डोमेन नेम इज एन आइडेंटिफिकेशन, देखो, दैट डिफाइंस अ रिलेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अथॉरिटी और कंट्रोल विद इन द इंटरनेट। Domain names are used in various networking contexts and for the application specific naming and addressing purpose. तो domain name basically किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या किसी कोई इंटरनेट पे अगर आपको कोई काम करना है, इंटरनेट में अपनी कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो वो डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराने की कई सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हो। अब होता क्या है, ये लोग कैसे बता रहे हैं, ये कैसे चेक करके बता रहे हैं, एक्चुअली एक पूरी डोमेन की रजिस्ट्री है, मतलब एक तरीके की डायरेक्टरी है। वो पहले चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था पवन, तो इसने क्या किया होगा, इसके पास एक डायरेक्टरी है, तो वो डायरेक्टरी में इसने पूरा चेक करा है कि पवन नाम की pawan.com नाम की कितनी वेबसाइट, तो उसको पता लग गया कि pawan.com तो बिका हुआ है, co.in भी बिका हुआ है, बस ये अवेलेबल हैं, तो इसने बता दिया कि ये तुम खरीद सकते हो। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ही नाम की 4 वेबसाइट्स ना चलें। हाँ, लेकिन हाँ, स्लाइटली डिफरेंस से चल सकती हैं, लेकिन .com को ना प्रमोट करना आसान होता है, co.in को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इन का मतलब होता है इंडिया और कॉम का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए लोग ना, तुमने देखा होगा ज़्यादातर लोग .com रखते हैं अपना नाम, कभी भी .in या .co.in पे कम होता है। लेकिन जो इंडियन वेबसाइट है, जिनको पता है हमारा काम सारा इंडिया में है, तो वो .co.in भी रख लेते हैं या .co.in भी रख लेते हैं या .in भी रख लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। सो आई होप डोमेन नेम के बारे में भी सबको समझ में आ गया होगा कि सौरभ शर्मा, यस प्लीज। Sir, are all domain names paid? हाँ Sir, are all domain names paid, or can we get any domain names for free? No, सौरभ, एक्चुअली क्या होता है, द डोमेन नेम इज जनरली इट इज फ्री। डोमेन नेम मीन्स GoDaddy पे जाएगा, कभी कहीं जाएगा, तो वो ना क्या करते हैं, दे गिव यू डोमेन नेम, बिकॉज तू डोमेन नेम कभी कभार वो फ्री दे देते हैं, फ्री मतलब 148 का रुपीज़ का दे देंगे। वो क्या होता है, चक्कर क्या है, इट इज़ अगेन एक फ्लॉ है। तूने डोमेन नेम खरीद लिया तो तेरे को हर साल जब वेबसाइट को रिन्यू कराना होता है, डोमेन नेम को तेरे को रीपेमेंट करनी होती है एवरी ईयर। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम तुम्हें फ्री दे देते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर उसके बाद तो तुम पक्के ग्राहक बन गए ना। अगर तेरा काम चल गया तो तेरे को एवरी ईयर यू हैव टू पे, अगर रिटेन करके रखना है नाम को, नहीं तो फिर वो नाम फ्री हो जाता है, कोई भी बंदा उसको खरीद सकता है आगे। समझ में आया सौरभ शर्मा? Yes, sir. ओके कृतिका, व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? सर डोमेन नेम और यूआरएल में क्या डिफरेंस है? बेटे यूआरएल तो वो www ये पूरा जब लिखती है तो उसको यूआरएल कहते हैं, और डोमेन नेम तो तेरा नाम है कंपनी का, जैसे तूने बोला वैभव.com। जब तू खाली वैभव.com बोल रही है तो वो तेरा डोमेन नेम है वैभव.com, और अगर तू पूरा बोलती है www.vaibhav.com तो ये तेरा यूआरएल है। समझ में आ गया? ओके सर। राइट, वेरी गुड। प्राची अग्रवाल, यस बेटा। सर कोई साइट्स .com और .in दोनों में अवेलेबल रहते हैं, तो सर .com अगर ऑलरेडी है तो इन मतलब .in भी क्यों वो रखते हैं? एक्चुअली क्या है, सुन, ये ना सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे मार्केट के अंदर तू जाती है कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे कई तरीके की कंपनी वाले हैं, ठीक है। .com वाला अलग बंदा है, .co.in अलग है, .in अलग है, ये सारे अपने अपने बंदे बैठे हुए हैं। तो वो तेरे से पूछ रहे हैं कि तेरे को .com चाहिए, जैसे सपोज तेरे को प्राची .com मिल रहा है, तो तू ऑब्वियसली तू .com खरीदेगी, तू .co.in तो तब खरीदेगी अगर तेरे को इन केस, जैसे तूने नाम सोच लिया कि तेरे को कंपनी का नाम प्राची रखना है, ठीक है, लेकिन प्राची के नाम से .com अवेलेबल नहीं है और तू चाहती प्राची ही रखना है, तो तू क्या करेगी, तू अदर अल्टरनेटिव ढूंढेगी। तो वो प्राची .co.in भी तेरे तू सोचेगी कि हाँ यार ये भी चल जाएगा मेरे लिए, तो तू हो सकता है तू उसको ऑप्ट कर ले। समझ में आया? नहीं सर, मैंने पूछा कि कोई साइट जैसे इंस्टाग्राम हो गया सपोज, तो इंस्टाग्राम हाँ .com में भी चलता है और .in में भी चलता है, हाँ, तो वो क्यों सर? अगर .com है ऑलरेडी उसके पास तो उसने इन क्यों नहीं खरीद? उन्होंने वो इंस्टाग्राम ने क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, वो सारे डोमेन नेम खरीद लेते हैं ताकि कंपटीशन ना हो।
मतलब कंपटीशन इन सेंस, सपोज कर उसने इंस्टाग्राम में बनाया .com और तू .in करके अपना एक कंपनी शुरू कर दी तूने इंस्टाग्राम के नाम से ही, तो वो इंस्टाग्राम को कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट मारेगी। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये .com .in सब कुछ खरीद लेती हैं पहले से ही, ताकि इनके नाम का कोई दूसरा बंदा ना आए मार्केट के अंदर। समझ में आया प्राची? यस सर। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तेरे को कभी नहीं मिलेगा। तेरे को तू सोचे कि मैं facebook.com तो है, मैं facebook.in मैं खरीद लूँ, तेरे को मिलेगा ही नहीं facebook.in के नाम से। ठीक है? ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सौरभ, तेरे को कोई और क्वेश्चन पूछना है? नो सर, क्वेश्चन नहीं था, वो ऐसे ही हैंड रेज है। ओके, सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेन नेम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आज की क्लास का, व्हाट इज डोमेन नेम? And why it is needed to have a domain name? Why it is needed to have a domain name for registering a website?